Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Bushra Gulzar and presenting my lecture number 14, class 9, subject is chemistry. Today's our topic is chapter number 2 का आप लास्ट वर्ड है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये आप लोगों ने सेवरल टाइम किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है. टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू शुड नो अबाउट शेल्स एंड सब शेल. आप लोगों ने सबसे पहले शेल्स के बारे में पढ़ा है. शेल्स क्या हैं आपने पहले पढ़ा है, कौन कौन से हैं. KLMN इसके शेल्स हैं और उनको बाद में हम सब शेल में डालते हैं, तो वो कैसे डालेंगे सब हम इसमें पढ़ेंगे. शेल्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड एटॉमिक थ्योरी द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर पाथ कॉल्ड द शेल और ऑर्बिट. ये डेफिनेशन आ गई शेल की. क्या है? अकॉर्डिंग टू बोर्ड एटॉमिक थ्योरी इलेक्ट्रॉन इन ऑफ एन एटम revolves around the nucleus in one of the circular path. अपने न्यूक्लियस के गिर सर्कुलर पाथ में जहाँ वो रिवॉल्व करता है उसे हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं. ईच शेल हैज़ अ फिक्स एनर्जी, सो ईच शेल इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल. Each shell is described by n value and can have 1, 2, 3 और further. जबकि हम लिखते हैं कि सबसे पहले शेल नंबर 1 है, इट इज़ K शेल, शेल नंबर 2 है L शेल, शेल नंबर 3 इट इज़ M शेल. As the value of n increases, the distance of electron from the nucleus and the energy of the shell increases. Subshells. A shell or energy level is subdivided into subshell or sub-energy level, and the value of a shell is placed before the symbol of for a subshell. For instance, N1 for K shell, it has only one subshell which are represented by 1s. For L shell and 2, L shell has two subshells. These are designated as 2s and 2p. For M shell and 3, so M shell has 3 subshell called 3p, 3s, 3p, 3d. While N shell has 4s, 4p, 4d and 4f subshell. A subshell can accommodate maximum 2 electrons. P subshell can accommodate maximum 6 electrons. आपको पता है कि S में सिर्फ 2 आते हैं और P में 6 और D में आ जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और F शेल में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं. The increasing order of energy of the subshell belonging to different shell जो है नीचे दी हुई है. सबसे पहले ये जो 3D ये है 2s 1s से बड़ा है, 2p 2s से बड़ा है, 3s 2p से बड़ा है, 3p 3s से बड़ा है, 4s 3p से बड़ा है. उसके बाद 3d आ जाता है. उसके बाद उसके बाद जो हम लेते हैं 3p के बाद 3d जो है वो नहीं आएगा, 4s आ जाएगा. उसके बाद 3d के बाद आप लेंगे 4p लेंगे. उसके बाद द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इज कॉल्ड as electronic configuration. We can fill the electron present in various element by using Aufbau principle. क्या है Aufbau principle? इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए according to this principle electrons fill the lowest energy subshell that is available first. जो हैं प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल में सबशेल में फिल होंगे जो कि सबसे पहले अवेलेबल होगा. दिस मीन इलेक्ट्रॉन विल फिल फर्स्ट 1s then 2s then 2p and इसके बाद सो ऑन. आपने देखना है कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 3p के बाद आप 3d नहीं लेंगे, 4s लेंगे. ये अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल के है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की आपने बुक में आपको दी हुई है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द डिफरेंट सब शेल्स ऑफ एन एटम. This we can do by the listing the symbols for the occupied subshells on one after the other. Show the number of electron in the subshell as a superscript to each symbol because the energies of subshell increases in the order 1s, 2s, 2p, 3p, 3p as 3s, 3p as indicated in the section 2.2.1. The first 5 subshells fill in that order. Hydrogen has atomic number 1, so it has only 1 electron that it will occupy lowest energy level यानी subshell के. और the electronic configuration of hydrogen is below. किस तरह है देखें, आपके इसमें दी हुई है हाइड्रोजन की दोनों इलेक्ट्रॉनिक शेल. हीलियम हैज़ atomic number 2, so it has 2 electrons. Since the subshell can accommodate 2 electrons, so electronic configuration of helium is 1s2.
Lithium has atomic number 3, so it has 3 electrons. 2 will fill first one subshell and the one 2s subshell. So electronic configuration of lithium is 1s2 2s1. Beryllium has atomic number 4, so it has 4 electron. जिस तरह बेटा हम लोग पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं, इसी तरह आप देखें शेल्स के साथ साथ सब शेल्स भी बढ़ते हैं, आगे जाती हैं। जैसे आपका शुरू में हमने हाइड्रोजन का देखा था, उसका सिर्फ फर्स्ट शेल का एक ही सब शेल होता है, वो एक ही था। मगर जैसे आप अब बेरिलियम पे पहुँचे हैं, इसका चूँकि एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके साथ 1s2 के साथ इसके साथ 2s2 आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 इसमें फिल हो जाएंगे, यानी सेकेंड पीरियड में ये एंटर होगा। Once 2 subshell is filled, the 2p subshell begins to fill. उसके बाद अगर आप 2s को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 2p को कंप्लीट करने के बाद आप 2p तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप थर्ड शेल में एंटर हो जाएंगे जो कि 3s और 3p। मगर 3p के बाद आप 4s2 पर आएंगे, 4s पर आएंगे, आप 3d पर नहीं जाएंगे। ये मैंने आपको समझाया था और आप इसके अकॉर्डिंगली ये सारे फिल करेंगे प्रॉपर। आफ्टर 2p हैज़ कम्प्लीटली फिल द एडिशनल इलेक्ट्रॉन विल फिल 3s सबशेल। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सोडियम मैग्नीशियम की गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए चैप्टर नंबर 3 मैं यहाँ से स्टार्ट करवा रही हूँ। इसमें कुछ डेफिनेशन हम करेंगे। क्या है कि द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ दैट पीरियोडिक टेबल इज शोन, फिगर में आपको दिखाई गई है, दैट द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आपका जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हमने लेफ़्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप किस तरह इनको फिल कर रहे हैं, इनकी इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं हमने उन्हें फिल किया है सीक्वेंस वाइज। हाइड्रोजन इज इन द टॉप, लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पर है। हीलियम जो है एटॉमिक नंबर 2 है, टॉप पे राइट साइड पर है। लिथियम इसका 3 है, लेफ्ट पर है ऑफ द सेकेंड रो में सबसे पहले नंबर पर लिथियम आ जाता है। उसके बाद द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ये डेफिनेशन है इसकी कि हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उन्हें हम पीरियड कहते हैं, जो लेफ्ट टू राइट होती हैं। दे आर वेरिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड, जो है हाउ मैनी पीरियड यू फाइंड इन द पीरियोडिक टेबल, कितने पीरियड हैं, देयर आर 7 पीरियड। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर पीरियड रेंज फ्रॉम 2 इन पीरियड 1 टू 32, जो है पर पीरियड रेंज जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो 2 से लेकर 32 तक है। और उसके बाद पहले शेल से लेकर 32 जो है 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। पहले शेल में सिर्फ आप कहते हैं 2 एलिमेंट है, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, और जो 6 पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट 3 पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, शुरू के 3 को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, फिर रिमेनिंग पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद इन अ पीरियड चेंज ग्रेजुअली एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे आप उसको लेफ्ट राइट मूव करते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं। व्हेन यू मूव फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ द प्रॉपर्टीज विद इन अ पीरियड रिपीट्स, क्योंकि जब एक के बाद दूसरे में आती हैं और ग्रुप ऊपर से नीचे आप देखें उन सब एक दूसरे से अपनी प्रॉपर्टीज उनकी रिपीट होती हैं, एक दूसरे से मैच करती हैं। दिस इज इन अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ के साथ ही है, इसके बराबर है। आप देखें कि पहले आपके ग्रुप में अल्कली मेटल हैं, दूसरे में अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, तीसरे में सिर्फ मेटल हैं, चलते हैं लास्ट 7 नंबर हैलोजन ग्रुप है। इसको प्रॉपर अपना याद करें और इसकी आपकी डायग्राम पेज 44 पे जो आपकी डायग्राम गिवन है उसको अच्छी तरह फॉलो करें और उसको रीड करना सीखें। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, प्रोफाइल सब शेल एंड ऑफ प्रिंसिपल आपने इसको करना है, लिखना है, आपने इसकी डेफिनेशन राइट करनी है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एलिमेंट सब हैं, इन सब के इलेक्ट्रॉन आप इनके एटॉमिक नंबर देखिएगा और इसके अकॉर्डिंगली आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा। पीरियड ग्रुप को डिफाइन करना है और इसके अलावा आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल और हैलोजन को भी डिफाइन करना है, ताकि प्रॉपर आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाए। याद रखें, कोशिश करें कि जो है आपकी जितनी कॉन्फ़िगरेशन हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसे बहुत अच्छे तरीके से करें। इसमें आपने ख्याल रखना है कि जब थर्ड शेल में आप जाएंगे तो 3p के बाद 3d नहीं लेंगे, आप 4s लेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।